My voice is clear. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Acha. Screen is visible. Everyone. Yes, sir. Yes, sir, it is visible. Chalo, let's start. Acha. So Yes, visible. today we have just started the bond parameters, right? So we have just discussed the bond length in a covalent compound. Okay. Now what is meant by bond length? Rather, we can also call it van der Waals radii. Van der Waals radii. See, van der Waals radii is basically found if the particular molecule is in what non-bonded situation. For example, noble gases. Okay, the radii is in general measured in van der Waals radii form. So the van der Waals radii represents the van der Waals WAALS van der Waals radii represents the overall size of the atom. The overall size of the atom, which includes its valence shell, which includes its valence shell in a non-bonded non-bonded situation. Okay, not that important, van der Waals radii. Now we will move towards a more important topic, which is bond angle. बॉन्ड एंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, लेकिन उतना ही आसान या इजी है. व्हाट इज बॉन्ड एंगल? सपोज योर मॉलिक्यूल इज समथिंग लाइक दिस AB2. This is the structure of the molecule. Okay, now what is bond angle? This angle is basically the bond angle. This angle is basically the bond angle. Okay, for example, if you take methane, this is the structure of methane. It is tetrahedral. We will get to know this when we will discuss the VSEPR concept. So this is methane. Fine. Now, what is the bond angle between the carbon and the two hydrogens? Any of the two hydrogens and the carbon. The bond angle is basically 109.5 degree. 109.5 degree. Okay. This is called bond angle. Now, the bond enthalpy. The bond enthalpy. What is bond enthalpy? See, bond enthalpy is basically nothing but, see, if you have a bond, suppose you have a 1 mole of bond. So now you have to break that bond. Okay. Now to break that bond, you need to supply some energy. So that energy is called basically bond enthalpy. So it is the energy required. It is the energy required to break 1 mole of bond. 1 mole of bonds of a compound in which state? Gas state. For example, you have a hydrogen H2. For example, you have hydrogen H2. Now to break this HH bond,
you need to supply some energy. What will you get? Two hydrogen atoms you will get, and you need some energy to break this hydrogen hydrogen bond, and this energy is basically, the data is 435.8 kilojoule per mole. So this much of energy you need to break this hydrogen hydrogen bond. This is the bond dissociation enthalpy of hydrogen. Okay. Similarly, if the bond is double bond, a little bit more energy will be required. If it is a double bond, little bit more energy will be required. And if it is a triple bond, then further more energy is required, because obviously if the bond order increases, the bond strength also increases. So it becomes 946 kilojoule per mole in case of nitrogen. Understood? To break a single bond, you need a less energy. To break a double bond, you need a little bit more energy. And to break a triple bond, you need a very high amount of energy. Understood? Is it clear, everyone? Yes, sir. Now, what happens if you have a compound, for example, water? This is water, H2O. Now, in single step, you cannot break all the bonds because there are two bonds, right? So in the first step you will break one bond. So what will happen? You will get one hydrogen and one OH. Remember, every single thing that I'm writing on the right hand side, they are in gas form. Okay, so just keep that in mind. इसको दिमाग में रखना कि सब के सब गैस फॉर्म में होगा. तो for this, suppose the delta H value is x kilojoule per mole. Okay. Similarly, in the second step, what we get? We get an OH. Now, in the second step, we will break this OH. So, we will get further one oxygen and one hydrogen. So, this delta H is, suppose y kilojoule per mole. We are not bothered with the data. Okay, the data is obviously there. Now, what happens? So, this is a two-step process. So, obviously, what you will do now, you will take the average of these two. So we call it average bond enthalpy. That is nothing but x plus y divided by 2 kilojoule per mole. Understood? Sir, not understood properly. Which one? Which one? Sir, last second. Achha. To break water, you need two steps. What are the two steps? In the first step, you will break this OH bond, right? In the second step, the OH is formed along with the hydrogen. Now this OH can be broken further, right, into oxygen and hydrogen. So two steps are there. For the first step, suppose the energy or enthalpy is x kilojoule per mole, and to break this second OH bond, that is in the second step. This is step 1, this is step 2. दोनों स्टेप में मैं इसको तोड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे दो टाइप का बॉन्ड है. दो टाइप का मतलब दो OH बॉन्ड है. पिछले वाले सारे के सारे में क्या था? एक ही बॉन्ड था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड. यहाँ पे देखो, इस साइड में एक OH, इस साइड में एक OH. तो पहला वाला OH को हमने तोड़ा, और क्या मिला हमको? एक हाइड्रोजन मिला और एक OH मिला. ये दूसरा वाला जो OH है उसको हमने बाद में तोड़ा. तो पहला स्टेप में डेल्टा H का वैल्यू x किलोजूल पर मोल, सेकेंड स्टेप में डेल्टा H का वैल्यू y किलोजूल पर मोल. दोनों डिफरेंट स्टेप में डिफरेंट वैल्यू होगा बॉन्ड एंथैल्पी का. अभी हम क्या लिखेंगे इन केस ऑफ वाटर? तो ऑब्वियसली हमको क्या लेना है? दोनों का एवरेज लेना है. दैट विल बी द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ वाटर. आ गया समझ में?
क्षितिज हाँ सर। समझे? আচ্ছা কে বলছিলে? সৌম্যদীপ বলছিলে তো? সৌম্যদীপ বুঝেছো? হ্যাঁ স্যার। বাকিরা? সাগ্নিক? Yes, sir. Understood. Okay. Okay, so this is basically bond dissociation enthalpy or bond enthalpy. We call it also bond enthalpy. So if it is a compound, that means more than one bond is there. So we'll break the bonds gradually, one by one, step by step, and we'll take the average of all the bond enthalpies of the steps that we write. Okay, and thus we'll get the average bond enthalpy, which is basically the bond enthalpy of the compound that we take. All right, so let's proceed and write what is bond order. Bond order. बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर का मीनिंग बहुत ही सिंपल है. एक कंपाउंड में या फिर एक मॉलिक्यूल में जितना सारा बॉन्ड होगा उसी को हम बोलेंगे बॉन्ड ऑर्डर. ओके, so the number of covalent bond is basically the bond order. Number of covalent bond is basically the bond order. For example, H2, इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1. For example, N2, what is the bond order? 3. Suppose in case of oxygen, what is the bond order? टेबल में बोलो. For a single bond, bond order is 1. For a triple bond, bond order is 3. For a double bond, what will be the bond order? झट से बोलो. 2. 2. The bond order is 2. So as simple as that. आ गया समझ में? Any doubt? Anyone having any doubt? Yes or no? No sir. Okay. So the next topic that we'll discuss is resonance. Resonance. देखो, what is resonance? First of all, we have to understand what is resonance. See, let's take an example. Let's take the example of carbonate ion. So this is the structure of carbonate ion, CO3 2 minus. CO3 2 minus. This is the structure of carbonate ion. Okay. Now, as you can see, there is one double bond and two single bonds, right? Now, anyone tell me which bond is longer? Double bond is longer or single bond is longer? Yes? Which bond is longer? Double bond is longer or single bond is longer? कोई तो बताओ. क्षितिज बताओ. क्षितिज. Single bond. Single bond is longer, right? But in carbonate, all the CO bonds are equal. अगेन हमको दो टाइप के बॉन्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है. एक है डबल बॉन्ड, दूसरा वाला सिंगल बॉन्ड. तो दो सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, एक डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, राइट? बट एक्चुअल में होना क्या चाहिए? एक्चुअल में होना चाहिए कि डबल बॉन्ड जो है वो थोड़ा सा शॉर्टर होना चाहिए और जो सिंगल बॉन्ड है वो थोड़ा सा लॉन्गर होना चाहिए. बट इन रियलिटी वी सी दैट ऑल दीज बॉन्ड्स आर इक्वल, राइट? नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? The reason is, see, we cannot basically explain this with a single structure of carbonate ion. So we have to take the help of some other structures also. So these are the structures. So these are the structures. Now you can see
both these carbons are having double bond, right? So both these structures, sorry, both the single bond containing CO bonds are now having a double bond. So as a result, we can write it like this: oxygen, carbon, oxygen, oxygen. A partial double bond, a partial double bond, and here also a partial double bond. Why a partial double bond is given? देखो, हर एक स्ट्रक्चर में कोई ना कोई CO बॉन्ड double bonded हो रहा है. For example, in the first structure, this CO is double bonded. In the second structure, this CO is double bonded, and in the third structure, this CO is double bonded. So it is quite obvious कि अगर हम तीनों को एक साथ में लिखें तो हमको ऐसे लिखना है कि तीनों में या फिर तीनों जो CO बॉन्ड है उनमें कोई डिफरेंस नजर ना आए. तो इसी वजह से हम इसको कुछ इस तरीके से लिखे ताकि ये तीनों C डबल बॉन्ड O ये तीनों इक्वल दिखे, इक्वल टाइप का दिखे बेसिकली. सो दीज स्ट्रक्चर्स जो हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है 1 2 3, इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स. और ये जो चौथा वाला है इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड. What do you mean by a resonance hybrid? A resonance hybrid is a combination of all the resonance structures. Combination of all the resonance structures which represents or which explains the properties of the compound. ये बाकी जो तीन स्ट्रक्चर है 1 2 3, इसको देख के हम ये कंक्लूजन नहीं लगा सकते कि ऑल द CO bonds आर इक्वल. बट जो रेजोनेंस हाइब्रिड है इसको देख के हम ये कॉन्सेप्ट लगा सकते, ये बोल सकते हैं कि the CO bonds are equal, all the CO bonds are equal. Understood? And this phenomena जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पूरा कंपाउंड में, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस. और 1 2 3 ये क्या, ये है रेजोनेंस स्ट्रक्चर. ये जो राइट साइड में हमने लिखा है थर्ड ब्रैकेट में रेड कलर का, उसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड. आया समझ में? बुझा गया लो? बोलो. Similarly, all the oxygen bonds in ozone are equal. The reason is exactly same. The reason is exactly same. क्या है रीजन? आया समझ में? These are the resonance structures of ozone. अगर हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड लिखे तो कुछ इस तरह से दिखेगा वो. ऑक्सीजन 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 डबल बॉन्ड, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड. सो दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड. रेजोनेंस हाइब्रिड जो क्या रिप्रेजेंट करेगा, जो कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेगा या फिर कंपाउंड के जो प्रॉपर्टीज है जिसको एक्सप्लेन करने में हमको हेल्प करेगा, दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड. आया समझ में? Anyone having any doubt, you can unmute yourself now and you can tell me. अगर किसी को किसी भी कॉन्सेप्ट, ये रेजोनेंस वाली कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो रहा है तो अभी का अभी मुझे बताओ. Any doubt, anyone? Shagnik?
Yes, sir. Understood. Tomodeep, Titankar, Yes, sir. No, sir. Gunjan. Okay, so I hope every one of you have understood. Okay, so should I proceed to the next one? Chalo, let's proceed. याद रखना एक चीज जो हम ऑलरेडी पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तब, अगर किसी कंपाउंड में रेजोनेंस होता है तो उसका मतलब दैट कंपाउंड इज वेरी मच स्टेबल। ओके, कोई कंपाउंड में अगर रेजोनेंस होता है उसका मतलब है दैट कंपाउंड इज वेरी वेरी मच स्टेबल। ओके, नाउ पोलैरिटी इन बॉन्ड्स। पोलैरिटी इन बॉन्ड्स, ये पोलैरिटी क्या है? देखो, पोलर, ये जो वर्ड है पोलर या पोलैरिटी, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, you have an HCl and this is the structure of HCl, right? Now, any one of you tell me which element of HCl is electronegative and which one is electropositive. बोलो, कौन सा वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कौन सा वाला इलेक्ट्रोपॉजिटिव है? क्या लगता है क्षितिज? हाँ सर. बोलो। Sir, hydrogen is positive. Hydrogen is chlorine. electropositive and chlorine is Positive. electronegative. All right, exactly that is the thing. तो ये क्लोरीन जो है that is more electronegative, right? और ये जो हाइड्रोजन है that is electropositive, या फिर तुम ये भी बोल सकते हो कि दिस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अभी हाइड्रोजन और क्लोरीन में हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एज अ रिजल्ट क्लोरीन का एक टेंडेंसी होगा, वो क्या होगा? ये जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, या फिर ये बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्लोरीन अपने तरफ खींचेगा। ओके, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां से कहां तक जाएगा? इस तरफ जाएगा कि नहीं? इस तरफ जाएगा, क्लोरीन की तरफ जा रहा है हाइड्रोजन क्लोरीन बॉन्ड वाला जो इलेक्ट्रॉन है। आ गया समझ में? तो Sir, इसी can I वजह repeat it से, again? हाँ बोलो। Sir, once more, repeat it again. वंस मोर, ओके। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑब्वियसली कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के लिए ये जो हाइड्रोजन क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है, वो जो लाल लाल दो इलेक्ट्रॉन तुमको दिखाई दे रहा है, वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? क्लोरीन की तरफ आएगा। क्यों? बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ज्यादा से ज्यादा, so that's why it will drag the electron density towards itself, right? so इसके वजह से क्लोरीन के ऊपर एक डेल माइनस चार्ज आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन का ज्यादा हो जाएगा, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन के ऊपर एक डेल प्लस चार्ज आएगा। तो इसी चीज को हम बोलते हैं पोलैरिटी, मतलब दो डिफरेंट डिफरेंट पोल में डिवाइड हो जाना, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, ये जो बटता है पोलैरिटी, इसको हम बोलते हैं। मतलब दोनों साइड में दो ऑपोजिट चार्ज, दो ऑपोजिट चार्ज या फिर दो ऑपोजिट फंक्शनल या फिर दो ऑपोजिट
टाइप का कोई फील्ड अगर जनरेट हो जाए, मतलब एक नॉर्थ पोल साउथ पोल हो सकता है, एक साइड में नॉर्थ पोल, एक साइड में साउथ पोल, एक साइड में पॉजिटिव, एक साइड में नेगेटिव, सो लाइक दिस, इसको हम बोलते हैं पोलैरिटी। आया समझ में? Yes, sir. अच्छा, एक मिनट। Okay, so this is basically polarity of bond. Okay, now as a result of this polarization, a moment is generated that is called dipole moment. तो क्या बोले? As a result of polarization, the molecule possesses a dipole moment. एक डाइपोल मोमेंट जनरेट होता है एक मॉलिक्यूल में ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ दिस पोलराइजेशन। ओके, तो ये डाइपोल मोमेंट जो होता है इसका एक्सप्रेशन कैसा होता है? अ डाइपोल मोमेंट इज लाइक द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस। ओके, डाइपोल मोमेंट को हम म्यू लिख के ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। What is the unit of dipole moment? The unit of charge, that is coulomb, and the unit of radius, that is meter. So coulomb meter is the unit of dipole moment. All right, coulomb meter is the unit of dipole moment. आया समझ में? एक और यूनिट है डाइपोल मोमेंट का जिसको हम बोलते हैं डीबाई, जिसको हम बोलते हैं डीबाई।
Debye को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर, Debye is a name of a scientist. Okay, in the honor of scientist Debye, we represent this with this capital D. So 1 Debye is equals to 3.34 into 10 to the power minus 30 coulomb meter. Okay, 3.34 into 10 to the power minus 30 coulomb meter. This is basically Debye. आ गया समझ में? अभी देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर HF ले लिए, HF में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. सो दैट्स व्हाई हाइड्रोजन से फ्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल वाटर, अभी देखो वाटर में थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ चीजें होगा. देखो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर. ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन. नाउ हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. सो ये OH बॉन्ड वाला जो डाइपोल मोमेंट है वो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ जाएगा. अच्छा, एक मिनट, एक बार एक मिनट करो. ठीक है, तो कहाँ पे थे हम? ये वाटर है. वाटर में दो OH बॉन्ड है. एक वाले में हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ डाइपोल मोमेंट होगा, दूसरे वाले में भी हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ डाइपोल मोमेंट होगा. ओके, नाउ ये दो डाइपोल मोमेंट को अगर हम एक साथ कंसीडर करेंगे, इसका मतलब वाटर में जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा दैट विल बी द सम ऑफ दीस टू डाइपोल मोमेंट्स, राइट? सो वो जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा वो इस तरफ आएगा. दिस इज द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट. दोनों मिलके इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा. सो कैन यू टेल मी वेदर डाइपोल मोमेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी
और वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा, स्केलर या वेक्टर? वेक्टर। वेक्टर होगा, यस। इसका एक मैग्नीट्यूड भी है, एक डायरेक्शन भी है, सो दैट्स व्हाई विल कॉल इट अ वेक्टर क्वांटिटी, क्वाइट ऑब्वियस, राइट। अभी एक चीज देखो, ये वाटर वाला तो हमने बना लिया, ठीक है। नाउ लेट्स कंसीडर दिस वन, दैट इज BF3। BF3 देखो, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ BF3? What is the structure of BF3? This is the structure of BF3. Okay. अभी एक चीज बताओ, बोरॉन और फ्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है? Who will say which one is more electronegative among boron and fluorine? Yes, झट से बताओ। क्विकली क्विकली কে বলবে? আশিক বলো, বোরন আর ফ্লোরিনের মধ্যে which one is more electronegative and which one is less electronegative? প্রথম মাইকটা অ্যাটলিস্ট আনমিউট করো। আশিককে বলছি, আশিক আনমিউট ইওর মাইক্রো। Yes, sir. ফ্লোরিন আর কি বলে ওকে, বন্ধ করো এবার মাইক্রো। ফ্লোরিন ইজ মোর ইলেকট্রোনেগেটিভ, বোরন ইজ লেস ইলেকট্রোনেগেটিভ। তাহলে ডিরেকশন কি হবে ডাইপোল মোমেন্টের? 3 fluorine boron fluorine bonds are there, so 3 of these bond moments will be like this, right? 3 bond moments. अभी देखो, ये वाला जो बॉन्ड मोमेंट है और ये वाला जो बॉन्ड मोमेंट है, ये दोनों का जो रिजल्टेंट बॉन्ड मोमेंट है वो किस तरफ जाएगा? इस तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? तो यस और नो? द बॉन्ड मोमेंट ऑफ दीज टू, जिसको मैंने ग्रीन से मार्क किया, उनका जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है वो किस तरफ जाएगा? राइट हैंड साइड। और एक है जो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, राइट? Yes, sir. अभी देखो, इनका जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा? दैट विल बी बेसिकली द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ दीज टू। ये एक, ये दो, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही इनका डाइपोल मोमेंट होगा। ये BF3 का एक्चुअल में जो डाइपोल मोमेंट है वो होगा, ठीक है। तो अभी देखो, ये BF3 का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो ऑलमोस्ट 0 dBi होता है, ओके। BF3 का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो ऑलमोस्ट 0 dBi होता है। क्यों होता है? क्योंकि दो डाइपोल मोमेंट ऑलमोस्ट, इनका जो मैग्नीट्यूड होता है, दीज आर ऑलमोस्ट सेम एंड द डायरेक्शन इज एग्जैक्टली ऑपोजिट। तो इसी वजह से म्यू का वैल्यू ऑलमोस्ट हो जाता है 0 dBi, ठीक है। आया समझ में? Yes, sir. Now the next one, that is this one. Compare the dipole moments of NH3 and NF3। NH3 और NF3 का जो डाइपोल मोमेंट्स है उसको कंपेयर करना है, कौन सा ज्यादा है और कौन सा कम है, ओके। तो देखो एक चीज, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ NH3 and NF3, दैट वी हैव टू सी।
So this is the structure of NH3, that is ammonia. ऊपर एक lone pair, and this is the structure of NF3. बस फ्लोरीन है हाइड्रोजन के जगह पे, rest everything will be same. Done. Okay. Now just have a look. डाइपोल मोमेंट पहले अमोनिया में देखेंगे, फिर नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड में देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी अमोनिया. नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव. सो दैट्स व्हाई दीज आर द डाइपोल और बॉन्ड मोमेंट्स. 3 NH बॉन्ड, 3 बॉन्ड मोमेंट, और एक होता है नाइट्रोजन और लोन पेयर. याद रखना लोन पेयर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. सो चौथा वाला कुछ ऐसे होगा. ये 3 का जो डाइपोल मोमेंट, ये चौथा वाला जो है, सबको मिला के होगा रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट. तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट विल बी इन दी दिस डायरेक्शन. ऊपर की तरफ होंगे, सब एक साथ ऊपर की तरफ जा रहा है. सो दैट्स व्हाई ऊपर की तरफ होगा रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट. सो इन केस ऑफ NF3 क्या होगा? फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. सो ऐसे जाएगा, राइट. एक और होगा जो ऐसे जाएगा. तो अभी देखो नीचे वाले 3 जो है उनके जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है किस तरफ आएंगे? नीचे की तरफ आएंगे. और ऊपर वाला एक है, तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो होगा वो कहाँ होगा? ये वाला और ये वाला का जो कॉम्बिनेशन होगा या फिर रिजल्टेंट होगा, वही होगा NF3 का डाइपोल मोमेंट. तो अभी मुझे एक चीज बताओ, इन दोनों में से किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, किसका डाइपोल मोमेंट कम होगा? झट से बोलो. बोलो बोलो. In case of NF3, the two dipole moments are equal, almost equal and opposite of each other. तो एक दूसरे को वो कैंसिल आउट करेंगे. तो इसका मतलब ये NF3 का जो डाइपोल मोमेंट है, it will be less than that of ammonia. अमोनिया में क्या है? दो सब एक साथ मिलके ऊपर की तरफ जा रहा है. So obviously it will be more. NF3 के लिए it is less. आया समझ में? If anyone have not understood, unmute yourself and tell me. अगर किसी को समझ में नहीं आया तो खुद को अनम्यूट करो और मुझे बोलो कहीं पे अगर कोई डाउट है. Not understood, sir. কে বুঝলে না? Sir, আমি বুঝতে পারলাম না স্যার এটা. আদিত্য, আচ্ছা বলো কোন জায়গাটা বুঝতে অসুবিধা হলো? Sir, the second one. আচ্ছা, NF3 আর NH3 এর মধ্যে তোমাকে কম্পেয়ার করতে হবে কোনটা ডাইপোল মোমেন্ট বেশি, কোনটার ডাইপোল মোমেন্ট কম. দেখো স্ট্রাকচারগুলো ভালো করে দেখো, NH3 আর NF3. NH3 এর নাইট্রোজেন বেশি ইলেকট্রোনেগেটিভ, হাইড্রোজেন কম ইলেকট্রোনেগেটিভ. ঠিক আছে, তাহলে বন্ড মোমেন্টগুলো কোন দিক থেকে কোন দিকে যাবে? হাইড্রোজেনের থেকে নাইট্রোজেনের দিকে. কোয়াইট অবভিয়াস, লেস টু মোর ইলেকট্রোনেগেটিভ, রাইট. আরেকটা যেটা থাকবে সেটা হলো নাইট্রোজেন থেকে লোন পেয়ারের দিকে, উপরে যে লোন পেয়ারটা আছে সেদিকে. তাহলে এটা উপর দিকে আরেকটা ফাইনাল. তাহলে চারটাকে যখন আমি কম্বাইন করব তখন সেই কম্বাইন্ড ডাইপোল মোমেন্ট বা রেজাল্টেন্ট ডাইপোল মোমেন্ট সেটা কোন দিকে যাবে? সেটা উপরের দিকে যাবে, তাই তো? বোঝা গেল? Yes, sir. Similarly, in case of NF3, nitrogen is less electronegative but fluorine is more electronegative. তাহলে যেটা more electronegative সেটাকে আমি পিঙ্ক দিয়ে মার্ক করে দিচ্ছি. এখানে নাইট্রোজেন ইজ মোর ইলেকট্রোনেগেটিভ, এখানে ফ্লোরিন ইজ মোর ইলেকট্রোনেগেটিভ. তাহলে কোয়াইট অবভিয়াস যেটা মোর ইলেকট্রোনেগেটিভ সেই দিকে বন্ড মোমেন্ট হবে.
লেস টু মোর, লেস টু মোর, তাহলে ফ্রম নাইট্রোজেন টু ফ্লোরিন, রাইট? তাহলে এই যে তিনটে বন্ড মোমেন্ট যেটা নিচের দিকে আসছে, তাহলে তাদের যে রেজাল্টেন্ট ডাইপোল মোমেন্ট সেটা কোন দিকে থাকবে? অবভিয়াসলি নিচের দিকেই থাকবে, ভেক্টরের রুল, তাই তো? তাহলে আরেকটা বন্ড মোমেন্ট কোন দিকে থাকবে? নাইট্রোজেন থেকে লোন পেয়ারের দিকে, যেটা উপর দিকে দেখতে পাচ্ছ NF3 এর ক্ষেত্রে, আরেকটা নিচের দিকে আছে। তাহলে এই দুটো বন্ড মোমেন্ট একটা আরেকটাকে কি করবে? নালিফাই করবে তো। কেন? কারণ এদের ডিরেকশন ডিফারেন্ট, বাট ম্যাগনিটিউড অলমোস্ট সেম। যদি সেম নাও হয় কিছু যায় আসে না, কারণ একটা আরেকটাকে নালিফাই তো করবে, কারণ এদের সাইন তো ডিফারেন্ট হবে, যেহেতু ভেক্টর, একটা উপরের দিকে একটা নিচের দিকে, বোঝা যাচ্ছে? তাহলে এই কারণে NF3 এর ডাইপোল মোমেন্ট NH3 এর থেকে কম হয়। এবার বুঝতে পারলে? হ্যাঁ স্যার। ওকে, তো এই হলো ডাইপোল মোমেন্ট। এইবার we will discuss a very important topic of chemical bonding, that is VSEPR theory or VSEPR concept. So let's discuss. VSEPR theory. What is the full form of VSEPR theory? It is valence shell electron pair repulsion theory. Valence shell electron pair repulsion theory or VSEPR theory. Okay. Now, अभी देखो, what are the main postulates of VSEPR theory? एक एक करके। नंबर 1 देखो, VSEPR थियरी एक चीज बोलता है, दैट इज अ शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल। पहले देखो लुइस, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, लुइस कॉन्सेप्ट, तो लुइस कॉन्सेप्ट में हमने ये पढ़ा है कि एक मॉलिक्यूल का बॉन्डिंग कैसा होता है। बॉन्डिंग हमने डिस्कस किया था लुइस कॉन्सेप्ट में। लुइस कॉन्सेप्ट में बॉन्डिंग के लिए कुछ एक्सप्लेनेशन दिया गया है, लेकिन it does not provide any kind of information regarding the geometry of the compound। एक जियोमेट्री क्या होगा, जैसे कि वाटर, वाटर का शेप होता है बेंट, ये हमको लुइस कॉन्सेप्ट से कभी पता नहीं चलता है कि वाटर इज बेंट। या फिर कार्बन डाइऑक्साइड इज लीनियर, ये हमको नहीं पता चलता लुइस कॉन्सेप्ट में। For this we need VSEPR theory because it can predict the geometry of the compound। So what are the postulates? तो पहला जो postulate होगा, the shape of the molecule, the shape of the molecule depends on the number of lone pair, okay, lone pair around the central atom। आया समझ में? कितना लोन पेयर होगा, that will decide the shape or geometry of the molecule that we are discussing। Secondly, ये जो लोन पेयर है, ठीक है, या फिर जो इलेक्ट्रॉन होता है, उनका टेंडेंसी होगा टू मिनिमाइज द रिपल्शन बिटवीन देम। सेकेंड पोस्टुलेट, pairs of electron in the valence shell
pairs of electron in the valence shell repel each other. क्यों रिपेल करेगा? Because they are negatively charged. सभी नेगेटिवली चार्ज्ड है, so that's why एक दूसरे को रिपेल करेंगे, राइट? अभी रिपल्शन होने के बाद दे विल ट्राई टू occupy such position so that the repulsion is minimized. रिपल्शन मिनिमाइज्ड हो जाएगा, कुछ इस तरीके से वो रहेगा, ओके? वैलेंस शेल को हम स्फीयर कंसीडर करेंगे. द वैलेंस शेल इज कंसीडर्ड एज अ स्फीयर. स्फीयर के जो सरफेस होता है, स्फीयर के सरफेस में इलेक्ट्रॉन पेयर रहेंगे, सो दैट दे मेंटेन अ मिनिमम डिस्टेंस, ओके, बिटवीन देम. उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो एक मिनिमम डिस्टेंस वो मेंटेन करने की कोशिश करेंगे. और एक इंपॉर्टेंट चीज, मल्टीपल बॉन्ड्स विल बी कंसीडर्ड एज सिंगल बॉन्ड. मल्टीपल बॉन्ड्स आर कंसीडर्ड एज सिंगल बॉन्ड. मतलब डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, विल कंसीडर इट एज अ सिंगल बॉन्ड, ओके? एक और बात, लोन पेयर क्या होता है, बॉन्ड पेयर क्या होता है, ये हमको पता है. अभी जो रिपल्शन का ऑर्डर है वो कुछ इस तरीके का है. द ऑर्डर ऑफ रिपल्शन, लोन पेयर रिपल्शन इज मैक्सिमम फॉलोड बाय लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और एकदम कम होता है बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक है? वेरी वेरी लेस in bond pair repulsion. So these are the postulates or the rules of VACPR theory जो हमको दिए निहोल्म और गिलेस्पी नाम के दो साइंटिस्ट ने मिलके. बहुत ही इंपॉर्टेंट थियोरी है क्योंकि बहुत सारी चीजें VACPR थियोरी से हमको पता चलता है इन केमिकल बॉन्डिंग. इट्स वन ऑफ द पिलर्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, ओके? अभी हम VACPR थ्योरी को अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके का ज्योमेट्री होता है किस तरीके के कंपाउंड में, ओके? आदित्य, व्हाट इज तीर्थंकर, वेयर इज तीर्थंकर? ওকে, এখনই স্যার বেরোলো I না don't অনেকক্ষণ know. আগে বেরিয়েছে? স্যার জানি না স্যার. সেটা ফাঁকিবাজ হয়ে যাচ্ছে. আচ্ছা ঠিক আছে, দেখা যাক. যাকে জিওমেট্রি আমরা এবার দেখব, ঠিক আছে? তো লেটস সি দ্য জিওমেট্রি. ফার্স্ট অফ অল, জিওমেট্রি অফ মলিকিউলস. Geometry of molecules. Just have a look. There are two types of molecules. एक जो सेंट्रल एटम में लोन पेयर नहीं रखते हैं, और दूसरा जिनके सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर होता है. तो केस वन इज दिस वन, द सेंट्रल एटम does not contain lone pair, and the case 2 is the central atom contains lone pair. तो पहला केस
हम अभी कंसीडर करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको यूज करके शेप या ज्योमेट्री प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो अगर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर दो है, फर्स्ट ऑफ ऑल केस वन में लोन पेयर नहीं रहते, सिर्फ बॉन्ड पेयर रहते हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इज 2, सो जियोमेट्री कैसा होगा, सेंट्रल एटम बी और 2 ए, दिस इज द जियोमेट्री। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लीनियर जियोमेट्री। लीनियर जियोमेट्री में जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। नाउ द सेकेंड वन, एक और इंक्रीज कर दो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, तो क्या होगा, जियोमेट्री बदल जाएगा, जियोमेट्री हो जाएगा कुछ इस तरीके का। तो नेक्स्ट देखो, ये जो जियोमेट्री है इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल प्लानर। ओके, ट्राइगोनल प्लानर, ठीक है। नंबर 4, नंबर 4 ठीक से देखो, एक और नंबर 4 नहीं, एक्चुअली नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इज 4। तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर अगर 4 हो जाए तो वो जियोमेट्री फिर से चेंज हो जाएगा। तो लेट्स राइट 4 ऑफ द ए लाइक दिस। तो ये जो जियोमेट्री होता है इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल जियोमेट्री और ट्राइगोनल प्लानर जियोमेट्री, ट्राइगोनल प्लानर में जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री, और टेट्राहेड्रल का जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज 109.5 डिग्रीज। तो जितना बॉन्ड पेयर हम बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, एज यू कैन सी दैट द बॉन्ड एंगल इज डिक्रीजिंग ग्रेजुअली, ठीक है। नेक्स्ट, अगर बॉन्ड पेयर 5 हो जाए, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर अगर 5 हो जाए तो जियोमेट्री कैसा होगा। सो नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, अरे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर अगर 5 हो जाए तो जियोमेट्री कुछ इस प्रकार का होगा, ए बीच में और ए ऐसे। ओके, तो ये जो जियोमेट्री है इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल प्लानर, सॉरी ट्राइगोनल प्लानर नहीं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, या फिर इन शॉर्ट टीबीपी जियोमेट्री। अभी ये टीबीपी जियोमेट्री में क्या होता है, देखो ये तीनों बी एक ट्राइगोनल प्लेन के ऊपर है, राइट। सो इन लोगों का जो बॉन्ड एंगल है दैट इज कितना होगा, देखो ये ट्राइगोन को कंपेयर करो, ये बी है, ये बी है और ये भी बी है और बीच में है ए। तो ए बी, ये बी ए बी, ये जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होगा, क्या बोल बे, ये बॉन्ड एंगल कितना होगा, लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग, ये कितना होता है बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल 60 बोलो, 120 120 एग्जैक्टली। तो ये बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। अगर एक ट्राइगोन के ऊपर, ट्राइगोनल प्लेन के ऊपर तो ऐसा बॉन्ड है तो ये वाला बॉन्ड एंगल कितना होगा, बोलो झट से बोलो, ये बॉन्ड एंगल कितना होगा, So 90. 90 degree. So there are two types of bond in a trigonal bipyramidal. So obviously there will be two types of bond angle.
The one bond angle is 120 degree and the second one is obviously 90 degree. All right. ये जो ऊपर वाले बॉन्ड होता है वो नीचे वाले बॉन्ड होता है, उनको क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड. ये बॉन्ड, दिस इज एक्सियल बॉन्ड. ये बॉन्ड, दिस इज आल्सो एक्सियल बॉन्ड. और बाकी ये जो तीन बॉन्ड है इनको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड. तो दोनों टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक को बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड, दूसरे को बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड. ओके. ना नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर अगर 5 हो जाए तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगा. अगर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 6 हो जाए तो क्या होगा? इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल. ऑक्टाहेड्रल कैसा दिखता है? बीच में ए और देखो बी, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल. This is called octahedral. And remember, what is the bond angle? बोलो तो जरा, bond angle कितना होगा? All the bond angles are same in octahedral complex, in octahedral structure. जल्दी बोलो. ये एक स्क्वायर, स्क्वायर बोल लो, प्लेन मतलब स्क्वायर वाले प्लेन के ऊपर दो बॉन्ड है, मतलब कुछ इस तरीके का, राइट? ये एक स्क्वायर प्लेन है, इसके ऊपर दो बॉन्ड ऐसे, राइट? आ रहा है समझ में? अभी एक काम करो, मुझको थोड़ा ये बताओ, ये एक स्क्वायर अगर हम लिखे ऐसे, या फिर कुछ भी बोलो तुम इसको, देखो ये है अपना ज्योमेट्री. अभी ये बॉन्ड एंगल कितना हो सकता है? ये वाले जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होगा? ऑब्वियसली यहाँ पे इतना डिटेल में मैं दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि हाथ से मैंने इसको ड्रॉ किया. तो ये वाले बॉन्ड एंगल कितने होंगे? कितने होंगे बोलो? So 90. 90 डिग्री. सो ऑब्वियसली 90 डिग्री. और ये वाला भी कितना? ये वाला ऑब्वियसली 90. तो सारे के सारे टाइप का जो बॉन्ड एंगल है ऑक्टाहेड्रल में वो होगा 90 डिग्री. So all possible bond angles in octahedral geometry is 90 degree. Okay, so these are the shapes और geometry. तो हमको क्या ध्यान में रखना है? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर के साथ साथ इसका जो ज्योमेट्री है उसका नाम हमको याद में रखना है. अगर दो बॉन्ड पेयर है तो लीनियर, अगर तीन है तो ट्राइगोनल प्लानर, अगर चार है तो टेट्राहेड्रल, अगर 5 है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, अगर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल. ठीक है. नाउ अभी हम कैसे डिटरमाइन करें कि क्या ज्योमेट्री होगा? फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक दिस वन, BF3. तो अभी हम BF3 का जो शेप वो कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे डिराइव करेंगे, या फिर हम कैसे बताएंगे कि BF3 का क्या शेप होने जा रहा है? ठीक से देखो, बोरॉन है. अभी हम मुझको एक चीज बताओ कि बोरॉन में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन बोरॉन? झट से बताओ. Boron will be the central metal in BF3.
तो जल्दी से बताओ कि बोरॉन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। ये तो तुमको बताना चाहिए, क्योंकि ये तो तुमको पता होना चाहिए। ऑलरेडी चैप्टर 1 हो चुका है हमारा, चैप्टर 2 भी हो चुका है। Sir, 5. 5 electrons are there in boron. So we can write the electronic configuration of boron as well. 1s2, 2s2 and 2p1. So this is the electronic configuration of boron, right? This is the electronic configuration of boron. अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो मुझे पूछो अभी। किसी को अगर इसमें कोई डाउट है तो मुझे पूछो अभी। डाउट नहीं है? ठीक है, चलो लेट्स प्रोसीड। देखो, दिस इज बोरॉन विथ 5 इलेक्ट्रॉन्स, फाइन, ओके। नाउ वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2s1, sorry 2s2 and 2p1. The second shell is the valence shell of boron, right? पहला शेल तो वैलेंस शेल नहीं होगा, दूसरा शेल होगा वैलेंस शेल, जिसमें s ऑर्बिटल है और p ऑर्बिटल है। So 2s1, sorry 2s2 and 2p1, these are the valence orbitals of boron. So अभी हम इसको दिखाएंगे। 2s कैसे लिखेंगे? ऐसे। 2p कैसे लिखेंगे? ऐसे। तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है। अभी देखो, बोरॉन में हमको क्या चाहिए? बोरॉन में हमको 3 जगह चाहिए या फिर 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए जिसके साथ 3 फ्लोरीन एटम अटैच हो सके थ्रू अ सिग्मा बॉन्ड। तो इन द ग्राउंड स्टेट it is not possible. So quite obviously the electron will jump from 2s to 2p, so that this comes to an excited state. In the excited state, as you can see, there are 3 unpaired electrons now. Okay, 3 unpaired electrons now. अभी देखो, 3 फ्लोरीन ऐसे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे। So now 3 fluorine can attach to with the boron in the excited state. तो एक चीज बताओ, यहाँ पे कितने सारे बॉन्ड पेयर हो गए? There are 3 bond pairs and 0 lone pair. तो टोटल क्या हो गया? 3। 3 अगर होगा तो जियोमेट्री कौन सा है? 3 बॉन्ड पेयर अगर है तो जियोमेट्री क्या है? कोई बताएगा जियोमेट्री क्या होगा 3 होने से? 3 होने से जियोमेट्री क्या होता है? देख के बताओ। क्षितिज, हाँ सर। बोलो जियोमेट्री बोलो। क्षितिज का दोनों अकाउंट क्यों? पता नहीं सर, अभी निकला था। अच्छा ठीक इशू है, है। अच्छा ठीक है, तो बोलो क्या सर? बोलो। अगर 3 होता है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, तो अभी मैंने बताया कि जियोमेट्री क्या होता है। क्या होता है जियोमेट्री? ट्राइगोनल प्लानर। ट्राइगोनल प्लानर। तो ये तो बताना चाहिए ना, ऑलरेडी मैंने अभी देख के बता रखा है। अभी बताने से क्या होगा? बता तो देना चाहिए पूछने के तुरंत बाद। सर, पहले बताया था आपने। अच्छा ठीक है, एक देखो BCl2 या फिर बेरिलियम क्लोराइड, इसको जरा देखो। इसमें वैलेंस वैलेंस बोलती सेंट्रल एटम कौन सा है? बेरिलियम विल बी द सेंट्रल एटम। तो बेरिलियम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? गुंजन, झट से बोलो। हाँ क्या बोले? 4 4 इलेक्ट्रॉन। तो झट से अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ बेरिलियम का।
1s2 2s2 1s2 2s2 हो गया। अच्छा, अभी देखो 2s के बाद इसमें क्या है, इसमें एक वैकेंट 2p ऑर्बिटल है, राइट। सो 1s2 2s2, देखो 2s2 तो है यहाँ पे वैलेंस शेल, सेकेंड शेल विल बी द वैलेंस शेल, राइट। तो 2s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2s में बस 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और क्या है, यहाँ पे एक वैकेंट 2p है, एक वैकेंट 2p है जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। 2p होता है, 2d नहीं होता, लेकिन 2p होता है, और इसमें क्या है, वैकेंट 2p है जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि 2s में ही 2 इलेक्ट्रॉन है। डू यू एग्री, एनी डाउट? अभी देखो ये जो ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट में इट इज क्वाइट ऑब्वियस, दो क्लोरीन यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकते, तो क्या होगा, दिस इलेक्ट्रॉन विल जंप टुवर्ड्स दी 2p। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा यहाँ पे, या फिर एक्साइटेड स्टेट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज दिस वन। So this is the excited state. ओके, आ गया समझ में? अभी देखो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब 2 क्लोरीन यहाँ पे जुड़ सकता है। तो 2 क्लोरीन अगर जुड़ेगा तो कितना बॉन्ड पेयर होगा, ओनली 2 बॉन्ड पेयर्स। कोई लोन पेयर है यहाँ पे, नहीं है, तो 2, अगर 2 होगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी ज्योमेट्री जो है वो कैसा होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितना आया, 2, तो ज्योमेट्री क्या होगा, झट से बताओ। सर लीनियर। लीनियर। सो बेरिलियम बीच में बैठेगा, इस साइड में फ्लोरीन, या सॉरी क्लोरीन, और इस साइड में क्लोरीन। तो दिस इज द ज्योमेट्री, मतलब कि लीनियर। आया समझ में? लास्ट एक और, मीथेन CH4, इसका ज्योमेट्री अभी समझेंगे। क्या नाम बताया इसका, मीथेन, याद रखना, जरूरत पड़ेगा। मीथेन, मीथेन का जो सेंट्रल एटम है वो क्या है, कार्बन है। कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, चलो नहीं बताओ, चलो नहीं बताओ, कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, हाँ 6 कितना बोले, 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। 1s2 अब तक तो 2s2 बता देना चाहिए था। 2 बोलो, 2s2 2s2 2p1 अरे 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2p1 कैसे होगा, 2p2 2p2। अभी बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा है, वैलेंस शेल कौन सा वाला है, सेकेंड शेल जो है वही second है, तो shell. वैलेंस शेल मतलब 2s एंड 2p, Yes sir. राइट। तो 2s एंड 2p को अगर हम ऐसे लिखेंगे तो 2s का 2 इलेक्ट्रॉन, 2p का 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 3 बॉक्स, सो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखेंगे, राइट। आया समझ में? क्या यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एकोमोडेट हो सकते हैं, देख के बताओ। 4 हाइड्रोजन को एकोमोडेट करने के लिए जो जगह चाहिए, क्या यहाँ पे है, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है, ओनली 2, राइट। सो 2 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन को नहीं एकोमोडेट कर सकते, इसके लिए हमको और भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कहाँ से मिलेगा 2 इलेक्ट्रॉन, अगर ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तभी मिलेगा। तो देखो
एक इलेक्ट्रॉन अगर जंप कर जाए 2p में 2s से, तो क्या बनेगा? 1 2 3 4 हो गया। 4 इलेक्ट्रॉन अभी है यहाँ पे, तो दे कैन एकोमोडेट 4 हाइड्रोजन्स, तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस हाइड्रोजन ऐसे रहेंगे। So 4 sigma bonds will be formed with 4 hydrogens. तो अभी बताओ how many bond pairs are there? बोलो साग्निक बोलो। Sagnik, how many bond pairs will be there? Sagnik, শুনতে পাচ্ছি না তোমার কথা আমি। কিছু তো বলো, কতগুলো বন্ড পেয়ার? সাউন্ড যাচ্ছে না, তুমি এখানে লেখো। How many bond pairs are there? Just write here. এতক্ষণ তো লাগার কথা না, চট করে লেখো। ছবিটা দেখো আবার। হয়েছে? নাম্বার অফ বন্ড পেয়ার্স দেখেছো কয়টা? লিখে ফেলো। এই যে এই যে এই যে এই যে এই যে, দেখো bond pair, how many bond pairs are there? কয়টা লিখেছো? 4, वेरी गुड। তাহলে 4 bond pairs are there। अगर bond pair 4 होगा তাহলে আমাকে বলো যে what is the geometry of methane? কে বলবে? If the number of bond pair is 4, then what is the geometry? Quickly, Sir, tetrahedral. tetrahedral. So carbon is there in middle and 4 hydrogens are like this. Hence it is tetrahedral. What is the bond angle? 109.5 degrees. So this is tetrahedral. Okay. Some you will do as a homework, like this one, PCl5. Okay, this you will do as homework, and SF6. So these you will do as homework, these two only. नेक्स्ट दिन हम लोग क्या करेंगे, यानी कि वेडनेसडे को हम क्या करेंगे? वेडनेसडे को हम वो सारे कंपाउंड्स को देखेंगे जिनमें लोन पेयर होंगे। ये वाले में हमने देखा कि लोन पेयर नहीं है, तो नेक्स्ट वाले में हम देखेंगे कि लोन पेयर होंगे। आया समझ में? तो वो लोन पेयर कैसे इंपैक्ट करेंगे वो भी हम देखेंगे ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री क्या होना चाहिए, क्या हो जाएगा, दैट विल बी डिफरेंट if there is a lone pair. Okay, that we are going to see in the next day's class. Understood everyone? आ रहा है VSEPR theory समझ में? Yes, sir. Just try these two as a homework. Okay, if you are unable to do, next day I will do these two and after that I will start. Okay, Okay, sir. তো ঠিক আছে, আজকে এত অবধি থাকবে। তো নেক্সট আমরা
ওয়েডনেসডে আবার সকালবেলায় করবো। ওকে, সকালবেলা কিন্তু ঠিকঠাক টাইমে ঘুম থেকে উঠে জয়েন করতে হবে। আধা ঘন্টা পরে যে জয়েন করো এগুলো কিন্তু হবে না, বলে দিচ্ছি সবাইকে। আশিক, তারপরে সবার কথাই বলছি আমি, তীর্থঙ্কর ছিল, তীর্থঙ্কর লেটে জয়েন করেছে, আদিত্য লেটে জয়েন করেছে আগের দিন। এগুলো করলে কিন্তু হবে না, টাইমলি জয়েন করতে হবে। ওকে, আর ভুলে গেলে চলবে না, ওয়েডনেসডে সকালবেলা। ওকে, চলো তাহলে আজকে রাখছি। Okay, sir. Thank you. থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.